ایک ایسا پانی جسے پینے والا ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتا ہے، وہ پانی کا چشمہ جس کی تلاش ہر زمانے کے بادشاہوں اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں نے کی ہے۔ آخر وہ پانی کا چشمہ کہاں ہے اور اس پانی کو دنیا کے کس انسان نے پیا تھا؟ ہیلو دوستو، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر سے میرے اسلامی کے ساتھ کے چینل پر آپ کا خوش آمدید۔ تو دوستو، آج کی ریئیکشن ویڈیو میں ہم دیکھیں گے آب حیات پانی کے بارے میں۔ دوستو، ایک ایسا پانی جس کو پینے کے بعد کیا انسان امر ہو جاتا ہے؟ کیا آب حیات پانی پینے کے بعد انسان مرتا نہیں ہے؟ دوستو، آخر یہ پانی کہاں ہے، کس دنیا میں ہے، کس کونے میں ہے؟ تو دوستو، یہ سب جاننے کو ملے گا اس ویڈیو میں۔ آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ پرانے زمانے سے ہی ریسرچرز اور گھومنے پھرنے والے ٹورسٹ لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ زمین کی کسی جگہ پر ایک ایسا چشمہ بھی موجود ہے جس کے پانی میں سبھی بیماریوں کو ٹھیک کرنے کے ساتھ ساتھ جسم کو امر بنانے کی طاقت موجود ہے۔ دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آب حیات یعنی فاؤنٹین آف یوتھ نامی اس چشمے کا ذکر ملتا ہے۔ آب حیات کے معنی آب بقا یا وہ امرت ہے جس کے بارے میں یہ خاصیت بیان کی جاتی ہے کہ جو اس پانی کو پیے گا یا اس میں نہا لے گا اسے کبھی موت نہ آئے گی اور وہ شخص ہمیشہ جوان اور زندہ رہے گا۔ آب حیات کو جھرنا یا کسی تالاب کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ شروعات سے ہی دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جو کافی امیر اور طاقتور تھے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ ہی زندگی کے ختم ہو جانے کا یا بوڑھا ہونے کا ڈر ہوتا تھا، اس لیے ایسے لوگوں نے پرانے زمانے میں اپنی بڑھتی ہوئی عمر کو روکنے اور اسے پیچھے لے جانے کے طریقوں کی کھوج کرنے کی کوشش کی، جس میں عہد وسطیٰ کے مشہور بادشاہ اور جرنیل شامل ہیں۔ اتہاس میں آب حیات کا سب سے پہلا ذکر یونان کے پرانے مشہور اتہاس کے جاننے والے ہیروڈوٹس کی کتابوں میں ملتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اپنی کتاب ہسٹوریا میں افریقہ میں آباد ایک پرانے قبیلے کا ذکر کیا ہے جنہیں مائکروبین کہا جاتا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور، جوان، لمبے اور خوبصورت لوگ تھے جن کی عمر کم سے کم 120 سال ہوتی تھی۔ اس کے باوجود وہ جوان دکھتے تھے۔ ہیروڈوٹس کے مطابق مائکروبین سہارا ریگستان اور افریقہ کے اتری علاقوں میں آباد تھے۔ مائکروبین کی سرزمین میں ایک خاص قسم کا چشمہ بہتا تھا اور یہ چشمے کا پانی ہی ان لوگوں کی لمبی عمر کا راز تھا۔ ہیروڈوٹس نے لکھا ہے کہ یونان کا بادشاہ جب مائکروبین کی سرزمین میں پہنچا تو ان لوگوں نے بادشاہ کو وہ چشمہ دکھایا جس میں نہانے کے بعد بادشاہ کا جسم بہت ہی چمکدار اور چکنا ہو گیا اور اس کے جسم سے خاص قسم کی خوشبو آنے لگی۔ اس چشمے کا پانی اتنا کمزور تھا کہ اس میں کوئی چیز تیر نہیں سکتی تھی، نہ لکڑی اور نہ ہی کوئی ہلکی چیز۔ ہیروڈوٹس لکھتا ہے کہ شاید مائکروبین کی لمبی عمر کی وجہ اس چشمے کے پانی کا لگاتار استعمال کرنا ہے۔ آب حیات کا ذکر اسلامی کتابوں میں بھی موجود ہے اور اس کے بارے میں کئی روایات نقل کی گئی ہیں، لہٰذا آب حیات اور ذوالقرنین کے بارے میں امام زین العابدین نے ایک لمبا قصہ بتایا ہے، جس کے مطابق ذوالقرنین جو اللہ کے ایک نیک بندے اور بادشاہ تھے، فرشتوں میں سے ایک فرشتہ ان کا دوست تھا جس کا نام رفائل تھا اور وہ آپ سے ملاقات کرتا تھا۔ ایک بار حضرت ذوالقرنین نے رفائل سے کہا کہ آپ آسمان میں اپنی عبادت کی کیفیت کو بتائیے۔ اس پر رفائل رو پڑے اور کہا کہ آسمان میں ایسے فرشتے ہیں جو ہمیشہ حالت قیام میں رہتے ہیں، کبھی بیٹھتے نہیں، اور کچھ حالت سجدہ میں رہتے ہیں جو کبھی سر نہیں اٹھاتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، ہم نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ سن کر ذوالقرنین رو پڑے اور کہا کہ اے رفائل، میری خواہش ہے کہ مجھے لمبی عمر ملے تاکہ میں اسے اپنی رب کی اطاعت و عبادت میں لگاؤں۔ اس پر رفائل نے کہا کہ اللہ نے ایک ایسا چشمہ پیدا کیا ہے جس کا نام آب بقا یا آب حیات ہے۔ جس نے بھی اس چشمے کا پانی پی لیا اسے کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں تک کہ وہ خود اللہ سے اپنی موت نہ مانگے۔ ذوالقرنین نے پوچھا، کیا آپ اس جگہ کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، لیکن وہ چشمہ ایسی تاریک یعنی ایسی اندھیری وادی میں ہے
जहां तक कोई इंसान या जिन्नात नहीं पहुंच पाया। चुनांचे जुल्करनैन ने सारे सालिहीन और उलमा को अपने दरबार में जमा किया और उनसे आब हयात के बारे में पूछा। सारे लोगों ने कहा कि हमें ऐसे किसी चश्मे के बारे में कोई जानकारी नहीं। अलबत्ता एक आलिम ने जुल्करनैन से कहा कि मैंने आदम अलैहिस्सलाम की वसीयत में उन वादियों के बारे में पढ़ा है और ये भी सुना है कि शाम बिन नूह की औलादों में से एक शख्स पैदा होगा जो उस चश्मे का पानी पिएगा और वो चश्मा उसी जगह पर है जहां सूरज डूबता है। लिहाजा हजरत जुल्करनैन ने सफर में निकलने की तैयारी और चश्मे को ढूंढने निकल पड़े। हजरत जुल्करनैन ने इस सफर में अपने साथ हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को भी ले लिया था। जुल्करनैन अपनी फौज के साथ लगातार 12 साल तक यूं ही पश्चिम की तरफ सफर करते रहे और एक काफी लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार ये लोग उस वादी के किनारे पहुंच गए। जुल्करनैन ने अपनी फौज से 6000 बहादुर सिपाहियों को लेकर उस अंधेरी वादी में दाखिल हुए जिनमें खिज़र अलैहिस्सलाम भी थे। उस वादी में दाखिल होते ही अचानक तूफान आ गया और जोरदार बिजलियां चमकने लगीं। जुल्करनैन की फौज बिखर गई और कुछ देर बाद जब तूफान थमा तो हजरत जुल्करनैन दाहिनी तरफ जा पहुंचे जबकि खिज़र अलैहिस्सलाम बाएं तरफ चले गए। खिज़र अलैहिस्सलाम इस अंधेरे रास्ते में भटकते हुए चश्माए हयात तक जा पहुंचे। आपको सख्त प्यास लगी थी, लिहाजा आपने उस चश्मे का पानी पिया, उसमें गुस्ल किया और उस पानी से वुजू बनाया। ये चश्मा दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा था। वहीं जुल्करनैन उन अंधेरी वादियों से गुजरकर बाहर निकल गए, लेकिन उन्हें वो चश्मा नहीं मिला क्योंकि आब हयात जुल्करनैन के मुकद्दर में नहीं था, जबकि उस पानी को पीने की वजह से हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को क़यामत तक की जिंदगी मिली और आप हमेशा जिंदा रहेंगे। द अलेक्जेंडर रोमांस नामी फारसी लेखक जो दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत कायम करने वाला बादशाह सिकंदर आजम के बारे में लिखी गई है, उसमें भी आब हयात का जिक्र मिलता है, जिसमें बताया गया है कि सिकंदर आजम अपने सिपाहियों के साथ चश्मे हयात की तलाश में निकला था और लंबे सफर के बीच वो उस अंधेरी सरजमीन के करीब जा पहुंचा था। कहते हैं कि जब सिकंदर अपने सिपाहियों के साथ उस अंधेरी वादी में पहुंचा तो उसे एक नदी मिली। उसने उस नदी के किनारे पड़ाव डाला और उसने खाने के लिए मछलियां और परिंदों को पकड़ा, लेकिन जब सिपाहियों ने उन परिंदों को उस नदी के पानी में धोया तो वो दोबारा जी उठे और वहां से उड़ गए। सिकंदर आजम का मानना था कि वो नदी जन्नत के किसी नदी से बहकर इस जमीन पर आ रही है, इसलिए इसमें जिंदगी देने की ताकत मौजूद है। उस पानी को सिकंदर ने पिया या नहीं और वो सरजमीन कौन सी थी, इसके बारे में इतिहास में कोई जानकारी नहीं मिलती। अगर गौर करें तो इसी तरह का वाकया हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान मजीद में मौजूद है, जिसमें आब हयात की तरफ इशारा किया गया है। वाकया कुछ यूं है कि मूसा अलैहिस्सलाम एक बार बनी इसराइल में खुतबा दे रहे थे तो एक शख्स ने पूछा कि लोगों में सबसे ज्यादा इल्म किसके पास है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मेरे पास। इस पर अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगाम भेजा कि आपको मेरा एक बंदा मिलेगा जो 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर मौजूद है, यानी जहां 2 दरिया का पानी मिलता है वहां मौजूद है, जिसे मैंने अपने उलूम में से एक इल्म अता किया है जो आपके पास नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनसे मिलने की ख्वाहिश की। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि अपने साथ एक मुर्दार मछली को ले लीजिए और 2 दरियाओं के मिलने की जगह पर जाइए और जहां वो मछली गुम हो जाए वहीं आपकी मुलाकात उस बंदे से होगी। लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने एक खादिम को साथ लिया और मरी हुई मछली के ऊपर नमक लगाकर थैले में रखा और साथ लेकर सफर पर निकल पड़े। जब वो चट्टानी इलाकों में पहुंचे तो उस थैले को एक चट्टान के ऊपर रखा तो अचानक वो मछली जिंदा हो गई और झरने के एक रास्ते के जरिए नदी में चली गई। जिस जगह वो मछली गुम हुई उसी जगह मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात उस बंदे से हुई जिसका नाम खिज़र अलैहिस्सलाम था। अब सवाल यह है कि वो मछली जो मुर्दा थी वो जिंदा होकर उस दरिया में कैसे चली गई। लिहाजा इमाम इब्न कसीर और तिबरी जैसे जलीलुल कद्र मुफस्सिरीन का कौल है
کہ جس چट्टान पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उस मछली को रखा था उसके नीचे आब हयात का चश्मा था और उसी पानी के छींटे पड़ने की वजह से मछली जिंदा हो गई थी। इसी तरह एक लातीनी सयाह जॉन मैंडेविल की किताब द ट्रेवल सोर्स जॉन मैंडेविल में भी चश्मा हयात का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक हिंदुस्तान के दक्षिणी इलाकों में मौजूद कोलाम यानी मालाबार की खाड़ियों में बहुत सारे पहाड़ हैं और उसी जगह पर आब हयात का वो चश्मा मौजूद है। अपनी किताब में जॉन मैंडेविल ने लिखा है कि सफ़र के दौरान जब वो कोलाम के इलाकों में पहुंचे तो वहां उन्हें एक ऐसा कुआं मिला था जिसमें अलग अलग मसालों की खुशबू आती थी और वो खुशबू हर घंटे बदल जाती थी। आसपास रहने वाले लोगों के मुताबिक इस कुएं के पानी से बीमारियां ठीक होती थीं और इसका पानी पीते रहने से इंसान बहुत लंबे वक्त तक जवान बना रहता था, जिसे विल ऑफ यूथ कहा जाता था। 11वीं सदी में आब हयात की कहानियां फिर से तब मशहूर हुई जब साल 1165 ईस्वी में प्रिस्टन जॉन ने बाज नदीनी बादशाह को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने अफ्रीका के एक इलाके का जिक्र किया था। उनके मुताबिक इथोपिया के करीब एक वाटर ऑफ फाउंटेन यानी चश्मा था जिसके पानी में यह खासियत थी कि उसमें नहाने वाले शख्स की उम्र 30 की हो जाती थी, चाहे वो कितना ही बूढ़ा क्यों ना हो। ईसाइयों की किताब यूहन्ना के मुताबिक जो शख्स भी आब हयात के उस चश्मे में दाखिल होगा उसके जिस्म में मौजूद हर तकलीफ और हर जख्म ठीक हो जाएगा, जबकि एक नजरिया ये है कि आब हयात ज़ेरे ज़मीन यानी अंडरग्राउंड दुनिया में मौजूद है। कई रिसर्चर्स ने ज़ेरे ज़मीन को खोजने के दावे भी किए हैं, लिहाजा मुमकिन है कि आब हयात ज़मीन के अंदर किसी जगह पर मौजूद हो और ताक़यामत उसे इंसानी नज़रों से छुपा दिया गया हो। हालांकि मेरे दोस्तों, आब हयात को लोग किस्से और कहानियों के अलावा कुछ नहीं समझते और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि आब हयात का जिक्र ना तो कुरान की किसी आयत में है और ना ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की किसी रिवायत में है। आब हयात के बारे में यही जानकारी किताबों में मिलती है, जबकि असल हकीकत तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो मेरे दोस्तों, आब हयात की ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।